Good morning to all of you. Am I audible? Yes, ma'am. Good morning. Yeah. Okay. Hello, students. Today, our guest session organized under the 4 Dimension series. The topic of today's session is business ideas and startup. Our guest speaker joined with us, Mr. Karan Mutha sir. So, before start the session, let me introduce about him. Karan Mutha sir is a managing director at Asensa Global. It's a entrepreneur institute of foreign trade, and he is working last 2019 to till date. He is established this firm in 2018, and Mr. Karan Mutha sir is our students since 1921 batch, as well as he is an alumni of Matrix Schools of Management Studies, Pune. Mr. Karan Mutha sir, just over to you. Please start your session, sir. Yeah, thank you, ma'am, for a wonderful welcome. So, is it okay if I go with English, Hindi, Marathi mix, or student want any particular language? Am I Yes, audible, sir, no ma'am? problem. Am I audible, ma'am? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, I was saying that are students comfortable with English or should I go with Marathi, Hindi language? Sir, English and Hindi. Okay, no problem. Thank you. So, good morning, one and all. So, it's my great pleasure that today your college has been invited me as a guest lecturer. So, just a small request to everyone, if possible, please on your video. So, it would be a good conversation for me because it's an online session. So, we have also attended these online sessions. So it's a request that those who are attending right now and those who are serious about the sessions, I would request each and everyone to on their video. Okay. And meanwhile, if you are having any doubts, you are free to just unmute your mic or you can raise your hand and you can ask the questions further. Or you can even put it into the chat box. So just to give you a short introduction. So my name is Karan Mutha. I am also born up in Pune itself. I am not so much, I would say, old basically. I am also last year pass out from Matric itself. Along with that, just to give a short introduction about me, I've started working at age of around 14 and 15, like into my 10th and 11th itself. So, working at the same time, being from a non-business family, the first point I would say that near me basically, whenever I used to see someone, okay, so I'm coming to direct few points. I used to just admire them like that. This person can do, then why cannot I? The age is, again, I would say the age is not a number for anyone. We can take many such great examples. But in today's era, we have got accessibility to a lot of things due to technology. So I used to sometimes compare myself कि यार ये बंदा या ये बंदी इतना कुछ कर सकते तो अपन क्यों नहीं कर सकते. भगवान ने सबको दिमाग दिया है, सबको सेम कैपेबिलिटीज दी है. इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि हम हमारा टाइम कैसे और कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं. रादर रोमिंग विद द फ्रेंड्स इनटू कॉलेज कैंपस एरिया, वी आर ओके विद दैट. गोइंग एंड फॉर आउटिंग्स वी आर ओके. वी आर गिविंग समथिंग प्रोडक्टिव टू आवर लाइफ. मतलब हम कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं या नहीं कर रहे, दैट इज अ मेन थिंग. टू बी फ्रैंक, ना मेरे ज्यादा आई वुड से, मुझे भी ये सब चीजें पसंद थी. घूमना हो गया, खाना पीना हो गया, मूवीज जाना. आई यूज्ड टू डू एवरीथिंग. द ओनली थिंग इज दैट वाज रेस्ट्रिक्टेड टू सम नंबर. लाइक इवन व्हेन आई वाज अटेंडिंग कॉलेज, माय मेंटर इटसेल्फ वाज डॉक्टर आनंद सर इटसेल्फ. सो ना मेरे ऐसे कोई फ्रेंड्स वगैरह ज्यादा थे भी, तो इट वाज लिमिटेड टू रेस्ट्रिक्टेड टू स्टडीज एंड कॉलेज पर्पस. ज्यादा हम लोग घूमने गए, कभी टाइम पास किया, ऐसा कुछ नहीं. माई सिंपल शेड्यूल वॉज माई जॉब, माई बिजनेस एंड माई कॉलेज लाइफ. द ओनली मोटो टिल डेट आई एम फॉलोइंग इज कि भाई जो भी आप लोग काम करो, इट शुड बी द बेस्ट एंड ग्रेटेस्ट. द गुड थिंग इज नेवर कॉपी समवन और कंपेयर समवन. आज मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल्स दूंगा एंड इट इज वेरी मच ग्रेटफुल फॉर मी बिकॉज
you guys are studying into the same college and उसी कॉलेज से मैं लास्ट ईयर पास आउट हुआ हूँ. इट इज नॉट लाइक कि ये 5-10 साल पुरानी स्टोरी है. सो आई डोंट नो कि आउट ऑफ लाइक आई वुड से 50-55 पीपल कितने लोगों ने कॉलेज में एंटर करने के बाद ये चीजें नोटिस किया या नहीं किया. द ग्रेट थिंग इज कि अपने जो स्टाफ है इट इज वेरी मच सपोर्टिव. सो जब भी कोई मैं काम करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, आई जस्ट प्रीवियसली कभी भी मैंने कुछ अचीव किया, इट इज जस्ट ड्यू टू माई मेंटर्स. मेरे कॉलेज मेंटर्स हो गए, बैचलर्स के मेंटर्स हो गए, प्रीवियसली पेरेंट्स, फ्रेंड्स या कलीग, जिससे भी मुझे प्रेरणा मिलते आती है. एंड द मेन थिंग अगेन आई वुड से कि लाइफ में गोल होना जरूरी है. डोंट एवर थिंक कि ये टाइम के बाद मैं स्टार्ट करूंगा या करूंगी. जैसे मैंने बोला कि आफ्टर माई 10th आई स्टार्टेड वर्किंग बिकॉज डायरेक्टली घर से था कि अभी वी डोंट हैव सफिशिएंट फाइनेंशियल्स दैट यू कैन स्टडी इनटू सच कॉलेज. आपको अगर करना है तो इतना करो. 11th-12th के बाद आई वाज गिवन अ फाइनल ऑप्शन, आपको बीकॉम करना है तो करो, अदरवाइज लीव द एजुकेशन. बैचलर्स के बाद इवन इनटू माय एमबीए इट वाज द सेम ऑप्शन, बैचलर्स हो गए, नाउ डू द जॉब. बट इन माय 12th इटसेल्फ, जब मैं 12th में था तभी मेरा एक अच्छा विजन मैंने क्या बना लिया था, मुझे 5 years का अच्छा एजुकेशन चाहिए. ओके, खाली पास नहीं होना है, बेस्ट एजुकेशन मुझे लेना है. अलॉन्ग विद दैट मुझे 5 years का वर्क से एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है. आई डोंट नो आउट ऑफ द 50-55 स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स है, आई वुड बी मोर थैंकफुल कि ऑलरेडी आप एमबीए करते करते जॉब कर रहे हो. कुछ इसमें से स्टूडेंट्स आई थिंक ऐसे भी हो गए जो कि सेम बैचलर्स के टाइम पे भी कॉलेज भी कर रहे, जॉब भी कर रहे हो. द सेकेंड थिंग, ऐसे आपको लगता रहेगा कि यार मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, बहुत बड़े कोई तीर मार रहा हूँ, तो मुझे स्टडीज में इतना ध्यान नहीं चाहिए, मुझे खाली नेम से के लिए डिग्री चाहिए. डोंट एवर डू दैट. ओके, अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो, डू इट 100%. बिकॉज देखो लाइफ में डिग्री आपको दोस्तों एक बार ही मिलने वाली है. सो डोंट डू कि जस्ट मुझे पास होना है एंड कुछ तो करना है, चलो 50-60% भी गिर गए, इट इज गुड. टुडे आई कैन प्राउडली से माई सेल्फ ओके कि जब मैं 11th-12th में भी था, माई स्कोर वॉज इंटू 70s and 80s. टिल 10th आई वॉज ऑल्सो एवरेज स्टूडेंट. बट जैसे जैसे चीजें समझने आने लगी, व्हेन आई स्टेप्ड आउट इन द वर्ल्ड, एक्चुअल जब मैं जॉब करने लगा, तब मैंने देखा यार कि 10-10, 15-15, 20-20 साल काम करने के बाद भी मार्केट में जॉब अवेलेबिलिटी कितनी है. एंड टेकिंग अप टू 10, 20, 50, 15 years ऑफ एक्सपीरियंस, जितना सैलरी लोगों को चाहिए उतना नहीं है. देयर इज ओनली निश मार्केट की जो उतना अर्न कर सक रहे हैं. फिर कुछ चीजें है कि देखो लाइक यू आर इनटू द एमबीए, इवन इनटू माय बैच एंड प्रीवियस बैच, आई यूज्ड टू सी दैट एवरीवन इज रनिंग बिहाइंड द जॉब. ओके, इसके लिए अपना आज एक अच्छा टॉपिक है बिजनेस आइडियाज एंड स्टार्टअप. एवरीवन इज रनिंग बिहाइंड द जॉब. बुरी बात नहीं है, जॉब के पीछे जाओ, आपको एक्सपीरियंस लेना 100% जरूरी है. विदाउट एन एक्सपीरियंस और वर्किंग अंडर और वर्किंग विथ एनीवन, आपको एक्सपीरियंस दुनिया का आने नहीं वाला. ओके, सो आपको कहीं ना कहीं तो भी काम करना है, बट वर्किंग फॉर एक्सपीरियंस इज डिफरेंट थिंग एंड वर्किंग फॉर मनी इट इज टोटली डिफरेंट थिंग. डोंट एक्सपेक्ट कि यार मैं एमबीए कर रहा हूं तो मुझे 25-50 हजार का पैकेज चाहिए. ठीक है, जितने भी आपके सराउंडिंग में है, एट योर एज, आपसे बड़े कोई हो गए, कभी भी इफ पॉसिबल ना डेयरिंग करके जनरली क्लोजली पूछ लेना कि भाई आप अर्न कितना कर रहे हो और कितने सालों से काम कर रहे हो. सो जस्ट थिंक, आप तो जस्ट अभी ये एरा में बाहर पढ़ रहे हो, ठीक है, यू आर जस्ट स्टेपिंग आउट इनटू द वर्ल्ड. वेयरएज जस्ट बेस्ड ऑन द डिग्री आपको कोई बहुत बड़ा जॉब ऑफर नहीं होने वाला. एंड चलो हो भी गया, वी आर सीइंग लाइक बायजूस एंड बहुत सारे हैं कि जो फ्रेशर्स को 25-30 हजार सैलरी दे भी देते. बट जिनको जिनको जॉब लगा है ना, जस्ट आस्क देम द सिचुएशन आफ्टर 2 and 3 months, दे आर जस्ट किक्ड आउट ऑफ द जॉब. बिकॉज कोई भी कंपनी आपको जॉब देती है, दे आर एक्सपेक्टिंग इन समथिंग रिटर्न. किसी के कंपनी के पास पैसा ऊपर नहीं है. इवन इनटू माय कंपनी व्हेन आई हायर समवन, इंटर्न रहने दो, फुल टाइम रहने दो, 1 महीना खाली ट्रायल पीरियड रहता है. राइट फ्रॉम सेकेंड मंथ आई एक्सपेक्ट द रिजल्ट्स. द ओनली थिंग इज कि तेरे साथ जो बाकी के काम करके अचीव रिजल्ट्स कर सकते, देन व्हाई नॉट यू. नो इश्यूज. आप तगड़ा एक्सपीरियंस लो, देन यू गो इनटू द मार्केट, तो आपको डिजायर्ड सैलरी कोई भी देगा. या एक्सपीरियंस लेने के बाद गो इनटू द बिजनेस सेक्टर. बट द मेन थिंग इज जस्ट डोंट रन बिहाइंड द मनी. ओके,
सो कमिंग बैक, जैसा मैंने बोला कि जैसे मैं काम को लगा, हलू हलू मुझे जैसे चीजें समझने लगी, ओके, देन आई अंडरस्टैंड कि डिग्री भी इंपॉर्टेंट है और मेरा वर्क एक्सपीरियंस एंड नॉलेज भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है. After that, when I stepped into the bachelor's, okay, so it was again a different program which was BMS, Bachelor of Management Studies. It is a type of a BBA itself. BMS बॉम्बे का प्रोग्राम है. फर्स्ट जब हमारा फर्स्ट ईयर लाइक पास आउट हुआ, द ग्रेड्स वर नॉट गुड. द ओनली थिंग आई वाज जेलस कि मेरे से ऊपर यार कोई तो है, एंड ये 4-5 लोग अगर अचीव कर सकते तो व्हाई नॉट मी. द ड्रॉबैक में ऐसे दुनिया को नहीं बोल सकता था यार मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, इट इज माई हेक्टिक शेड्यूल, मैं स्टडी कब करूँ. दुनिया में ऐसे बहुत सारे बच्चे जो 3-3 4-4 काम करके दे आर स्कोरिंग इनटू मास्टर्स, देन व्हाई नॉट आई. So bachelor's into second and third year, I score above 80-85%. Similar into masters. Ma'am, are the students allowed to unmute their mic? Yes, sir. Yeah, okay, thank you. So just मुझे स्टूडेंट से पूछना है कि आप लोग कॉलेज हो, आप कॉलेज आपका स्टार्ट हो गया, यू आर गोइंग टू द कॉलेज, यू कैन आंसर एनीवन कैन आंसर दिस. आप कॉलेज जा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. ओके ग्रेट. कॉलेज जब आप जाते हो, जब आप एंटर करते हो, ओके, जब आपकी स्टेयर स्टार्ट होती है गोइंग टू द फर्स्ट फ्लोर, लेफ्ट साइड में किसी ने देखा है सब अपना चार्ट लगा हुआ है, राइट फ्रॉम आई थिंक 2012 और 14 जितने भी अपने कैंडिडेट्स पास आउट हो चुके हैं, तो टॉप 3 आई थिंक उनके नंबर्स एंड परसेंटेज शेयर किए गए बोर्ड पे कि हु वर द हाईएस्ट परसेंटाइल इनटू दैट थिंग, लाइक ये साल में कौन सबसे टॉप किसने स्कोर किया था, क्या किया था. एनीवन हैज ऑब्जर्व दैट चार्ट? Yes, sir. या व्हाट्स योर नेम? Tanaya. तनया. Tanaya Kodu. ओके ओके ग्रेट. सो आपने ये चार्ट ऑब्जर्व किया है और किसी ने चार्ट ऑब्जर्व किया? लेफ्ट साइड में 2-3 चार्ट्स लगे हुए हैं, बिकॉज अपने कॉलेज में बहुत सारी इंफॉर्मेटिव I चीजें have लगी हुई है. observed. The package after the MBA is also written over there. क्या 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 सर? Package. यस, Package पैकेजेस of भी the दिए गए, student. राइट एग्जैक्टली. पैकेजेस वाले चार्ट ऊपर है एंड परसेंट वाले नीचे चार्ट है. सो अपार्ट फ्रॉम तनया मैम, इज देयर एनीवन कि जिसने वो चार्ट ठीक से ऑब्जर्व किए परसेंट वाले? एनीवन इनटू दिस? यार कॉलेज में जा रहे हो, कॉलेज की दीवारें पे देखो क्या है, बाकी की चीजें होने वाली है. बहुत सारे बोर्ड्स है, सब जगह इंफॉर्मेशन लगा है, चार्ट्स लगाए. ओके, नो प्रॉब्लम. सो तनया जी, आपने क्या ऑब्जर्व किया था वो चार्ट में, आप कुछ बता सकते हो? सर पहले तो ऊपर के जो पैकेजेस थे, ओके एंड देन नीचे परसेंटेज वगैरह लिखे हुए थे, और एक और चार्ट है वहाँ हमारे कॉलेज के डायरेक्टर सर के वगैरह फोटोज है कि सेशन वगैरह हुए ओके कॉलेज ओके में. ओके. कमिंग टू द परसेंट चार्ट, जो आपने परसेंट चार्ट ऑब्जर्व किया, उसमें से आपने ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया कि कॉलेज में पिछले 10 साल में ये जो चार्ट्स लगे हुए, हु इज द हाईएस्ट स्कोरिंग पर्सन इनटू दैट थिंग, कि अभी तक हाईएस्ट किसने स्कोर किया है पिछले 10 सालों में? हैव यू ऑब्जर्व दैट? नो सर. ओके ग्रेट, कोई इशू नहीं है. सो आई डोंट नो अपार्ट फ्रॉम दिस 60 पीपल, बट कभी भी आप कॉलेज जाओ ना, ओके, सो जस्ट आपका एमबीए स्टार्ट हुआ, इट्स नॉट लेट, तो जस्ट ऑब्जर्व दैट चार्ट्स. 2 चार्ट वहां पे लगे, राइट फ्रॉम 2012 एंड 14. सो हर साल 3-3 रैंकिंग्स वहां पे लगाए हुए कि हु इज द हाईएस्ट रैंकर होल्डर इनटू दैट. सो जब मैं कॉलेज में एडमिशन लेने गया, नो डाउट इनटू दैट आनंद सर हैड गाइडेड मी वेल, बिकॉज आई वाज कंफ्यूज्ड कि जॉब करते करते अभी यार मास्टर्स ले रहा हूँ मैं, कर सकूंगा या नहीं. सो ही सेड मी यार आप ले लो एडमिशन, आपसे हो जाएगा. आई डोंट नो कि उनको कॉन्फिडेंस था वो चीज पे या नहीं, बट ही गाइडेड मी वेल. सो अपने यहाँ पे एक प्रीवियस एल्यूमिना है, जुआना फर्नांडिस. She was a highest scoring girl into past 10 years. Her percentile is 78%. जिस दिन मैंने एडमिशन लिया ना, I decided into that
आई डोंट नो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर, बट यार ये स्क्रीन पे मेरा नाम आना चाहिए. एंड पास्ट 10 years का जो मैट्रिक्स का रिकॉर्ड है ना, विच वॉज बिलो 80%, ये रिकॉर्ड मुझे ब्रेक करना है. And I can say it proudly that I have scored more than 85%. And even the main inspiration good for me, मुझे आज भी याद है, डॉक्टर सतीश उबाए प्रिंसिपल जो अपने हैं. So seeing my first year result, I saw some upsetness onto his face. He said, यार करण स्कोर बहुत डाउन है तेरा. This is not my expectation from you. You should be above 80s because first year में मुझे कम थे थोड़े मार्क्स. So he said कि ठीक है आपका स्कोर ठीक ठाक है, चलो ज्यादा है, नो इश्यूज, बट मुझे एक्सपेक्टेशन आपसे ज्यादा है. दैट वाज द, आई वुड से, वर्ड्स विच हिट मी बैडली. कि यार मुझे लग रहा है मैंने अच्छा किया है, बट जो मेरे मेंटर है, जो मेरे फैकल्टी है, जिनको मेरे पे सबसे ज्यादा विश्वास है, तो आई कैन नॉट गिव रीजन ना यार कि यार मैं स्टडीज में हूँ, मेरे पर्सनल प्रॉब्लम से मैं XYZ चीजों में उलझा हुआ हूँ. नहीं, अगर बंदे को मेरे से एक्सपेक्टेशन है ना, 100% if he is taking efforts onto me, no doubt कि मुझे वो इन्हें फुलफिल करना है. So that was my turning point. Okay, so I would say कहीं भी आप जा रहे हो, let it into the job field, आप कॉलेज में हो, observation strong करो and do the best possible thing. Let it be a job, business, any sort of thing. अगर आप MBA भी कर रहे हो, डोंट डू दिस कि यार मुझे समझ रहा नहीं है. आस्क 100 times 100 questions to your mentor. मुझे तो आज तक ऐसा कभी मेंटर मिला नहीं है, ना अपने कॉलेज में है ऐसा कोई कि आपने कोई सवाल आप लेके गए हो एंड नो वन इज एक्सप्लेनिंग यू. बट अगर दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है तो वो होठों पे आना चाहिए एंड इट शुड बी आस्क्ड, बिकॉज लाइफ में वाई होना जरूरी है. बहुत लोग ऐसे रहते हैं, यार मैं ये क्वेश्चन क्यों पूछूं, क्या जरूरत है, इसका क्या बेनिफिट है. दीज आर द लेजी क्लम्स इनटू योर लाइफ. ऑलवेज देयर शुड बी वाई इन योर लाइफ. ये चीज मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों हो रही है, इसका कॉज क्या है. देयर शुड बी ऑलवेज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. ओके, सो सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि अगर आपने टारगेट्स नहीं ना रखा इनटू योर MBA ऑल्सो, 2 साल आपके पास है, स्टार्ट वर्किंग एनीवेयर इनटू एनी पैकेज, बिकॉज आपको एक्सपीरियंस लेना है. मैं वापस बोल रहा हूँ, इफ यू आर टेकिंग एक्सपीरियंस, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा क्वालिफिकेशन है, एनी कंपनी वुड बी पिकिंग अप यू अप. और अच्छा एक्सपीरियंस लो, स्टार्ट विद अ बिजनेस. चलो आपको काम नहीं करना है, इमीडिएटली स्टार्ट विद अ बिजनेस. मैं आज आपको कुछ ऐसे आइडियाज सिखाऊंगा कि जो आपकी हॉबी भी है एंड वो हॉबी को पैशन में बदल सकते हो. Why I am into this field today, like मैम ने जैसे बताया, I am owning 2 firms, INSA Global which is into export and import, EIFTA मेरा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है. सो स्टेप बाय स्टेप ये मैंने वेंचर स्टार्ट किए हैं. आफ्टर जैसे मैं सेटल डाउन करूंगा थोड़ा थोड़ा आगे, जैसे इनका बेस और स्ट्रांग होगा, आई वुड बी एंटरिंग इनटू मोर वेंचर. ये मेरे ऑलरेडी विजन्स मैंने प्लान करके रखे, बट डू और डाई मुझे अचीव करना ही करना है. आई हैव अ गुड एक्सपीरियंस अराउंड 5 to 6 years. मैंने अच्छा खासा एक्सपीरियंस ले लिया. एंड जस्ट थिंक, पुणे जैसे सिटी में हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 2 to 3 years, जब मैंने सेकंड जॉब चेंज किया, माय सैलरी वाज ओनली 14 to 15,000. वेरेज पुणे में आप 2-3 साल काम करो, आपको 25-30-40 हजार कोई भी जॉब दे देगा. बट माय पैशन इज ट्रैवलिंग, मीटिंग न्यू पीपल. ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ बात करो, घूमने जाओ, ज्यादा से ज्यादा चीजों का नॉलेज लो. दैट इज माय पैशन. मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे घूमने जाना है, यार मेरा पैसा खर्च हो रहा है, मैं घूमने क्यों जाऊं, ये चीजों के बारे में मैं जानकारी क्यों लूं, ये चीजों के बारे में मैं लोगों को जानकारी क्यों दूं, उसमें मेरा टाइम जा रहा है, मेरा पैसा जा रहा है. नहीं, दैट इज माई हॉबी. टिल डेट आई एम फॉलोइंग माई हॉबी एंड पैशंस, एंड पैसे अपने आप आता है, जाता है, सब कुछ हो जाता है. सो फॉलो योर पैशंस, बिकॉज आउट ऑफ द 65 पीपल यहाँ पे, आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई भी बंदा या बंदी होगी कि जिसको मतलब लाइफ में कुछ हॉबी नहीं है, पैशन नहीं है. मैक्सिमम गर्ल्स अपन देखते, दे आर गुड एट फोटोग्राफी, मेकअप करने में बढ़िया है. लड़के अगर देखेंगे तो कुछ अकाउंटिंग में अच्छे हैं, किसी का टेक्निकल्स अच्छा है, कोई बात करने में अच्छा है. So you have a lot of possible fields into this. Okay. So this is just a small introduction about me again. So जैसे मैंने बोला, I started working at the age of 14-15. तब मैं कुछ बुक्स वगैरह लेता था second hand and I used to sell that ahead. Even I used to bring some clothing accessories like
होम यूज हो गया है या बॉयज एंड गर्ल्स हो गया, अगर आप आपके 60-65 बंदों में भी देखोगे तो एवरीवन इज वेयरिंग सम और द अदर ब्रांडेड और रेप्लिका कॉपी ऑफ दैट थिंग. मोबाइल्स हो गए, लैपटॉप, वॉलेट्स हो गए, वॉचेस हो गए, एनी सॉर्ट ऑफ थिंग. आई एम 100% श्योर आउट ऑफ दिस 65 कोई ना कोई एक तो बंदा बंदी होगी जो कुछ ये एरिया में काम करता रहेगा. बिकॉज आपको इसमें ज्यादा कुछ परचेस करके रखना है या कुछ करना ये नहीं है. इट वॉज अ सिंपल थिंग कि कोई कुछ मुझे मिल जाता था हु इज अ गुड डिस्ट्रीब्यूटर, उसके पास से मैं फोटो खींच के ऑनलाइन सब जगह पब्लिश कर देता था. आई यूज्ड टू जस्ट रोट इट इनटू माय फ्रेंड्स कि ये मेरे पास है. ओके, सो फर्स्ट जॉब जैसे आई सेड कि इनटू 11th-12th आई टुक अप माय फर्स्ट जॉब. मीनवाइल जैसे मेरा 12th का एग्जाम खत्म हुआ, ओके, आई डोंट नो कि अपार्ट फ्रॉम दिस 65-70 पीपल you would be having your bachelor's or 11th-12th into the science field. No doubt I was into the commerce field 11th-12th. So science field के जो मोस्टली क्लासेस रहते हैं, नीट हो गया, फिर JEE हो गया, मेंस हो गया, सो इनका स्टडी प्रिपरेशंस ना गाइस लगभग पकड़ के चलो एक दिसंबर जैन फेब में स्टार्ट होता है एंड द सीजन इज स्टिल अप्रैल एंड मई. सो जहाँ पे मैं क्लासेस कर रहा था माई 11th and 12th, I got introduced to one of our science classes. मतलब सर के जो कलीग थे उनको मैंने उनके साथ इंट्रोडक्शन हुआ. देन ही ऑफर्ड मी कि लाइक यार अभी छुट्टियां चल रही है, मुझे कोई बंदा चाहिए जो थोड़ा सा मेरे क्लास में चीजें हैंडल कर सके, कॉलिंग कर सके. आर यू ओके टू डू विद इट? आई सेड फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरा सर जॉब चल रहा है तो चीजें मैं मेरे हिसाब से अरेंज अप करूंगा. आई डिड अ सिंपल थिंग. मेरी जो एक कलीग थी मैंने उसको वहां पे बिठा दिया. जैसे मेरा जॉब छूटता था 6-6:30 बजे, मैं शाम को वहां पे जाके पूरा रिपोर्टिंग ले लेता था. एक दिन पहले उसको मैं पूरा टास्क दे देता था कि यू हैव टू डू दिस थिंग. एक महीने के बाद मुझे रिजल्ट अच्छा मिला, द कन्वर्जन वाज गुड एंड क्लासेस में से वो पर्टिकुलर एक क्लास में से इनकम अच्छा हुआ. आई थॉट इट फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर ये क्लासेस को कॉलिंग करके लाइक साइंस की फीस ज्यादा रहती है, 11th-12th कंबाइन आई थिंक 50,000 लाख रुपीज तक फी जाती है. एट माई टाइम द क्लासेस वर चार्जिंग 80,000 रुपीज. सो लगभग द इंसेंटिव वॉज 4,000 ऑन पर कन्वर्जन प्लस कॉलिंग का एक फिक्स अमाउंट अलग से मिलता था. मैंने सोचा यार यहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरा फर्स्ट जॉब था, मैं अर्निंग यहाँ पे 8-9 हजार रुपए कर रहा हूँ एंड यहाँ से मुझे एक ही क्लास से अच्छा खासा इनकम हो रहा है आफ्टर गिविंग आउट पे टू दैट कलीग. मैंने अच्छा इमीडिएटली सेकेंड मंथ में डिसाइड किया जितने भी मेरे एरिया में क्लासेस है ना मैं सबको विजिट करूंगा. आई प्रिंटेड माई कार्ड्स, ओके, आई डिजाइन माई ओन कार्ड्स. मार्केटिंग कंसल्टेंसी मुझे देनी, पहले से मेरा टॉकेटिव नेचर है. सो ठीक है, एक क्लासेस को मैंने अप्लाई किया और 4 क्लासेस को अप्लाई करते हैं. एंड ट्रस्ट मी गाइस, आई वाज हैविंग 6 क्लासेस एट अ टाइम टू हैंडल ऑल दिस सिचुएशन. द सिंपल थिंग वाज मेरे कनेक्ट्स में जितने भी लड़कियां हैं जिसको भी जॉब चाहिए था या इंटर्नशिप करनी थी 2-4 महीने की, मैंने सबको वहां पे लगा दिया. माय जॉब टाइमिंग वाज 9:30 to 6:30. 6-6:30 बजे जैसे निकलता था, हर एक क्लास पे 1-1 घंटा जाता था. रात को 11 या 12 बजे घर पे मैं जाता था. एंड ट्रस्ट मी कि वो 5-6 महीने में मैंने बहुत अच्छा खासा अमाउंट मतलब अर्न आउट कर लिया. फिर जैसे जैसे चीजें समझ में मेरे दिमाग में फिक्स हो गया यार मार्केटिंग ऐसी चीज है जो हर एक बिजनेस को, हर एक बंदे को या किसी को भी हु इज एनीवन, ये मुझे मतलब श्योर हो गया कि आई कैन डू दिस फील्ड एंड ये फील्ड मेरे लिए बनी बिकॉज दैट वाज माय पैशन. तब इतना समझता नहीं था. ओके, सो आफ्टर दैट मैंने फर्स्ट जॉब मैंने चेंज किया अराउंड माय फर्स्ट ईयर, जहाँ पे मेरा कलीग काम करता था. सो ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू दैट कंपनी कि करण ये सिमिलर फील्ड है. द ओनली थिंग वाज जो मैं डोमेस्टिक ट्रेडिंग करता था, ये कंपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काम कर रही है. तो जो तू लोकल लेवल पे डोमेस्टिक ट्रेडिंग काम कर रहा है, ये बेसिकली आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट चीजें करती है. एंड दैट वाज अ इंस्टीट्यूशन बेसिकली. सो टीचिंग इज ऑल्सो माई हॉबी बिकॉज इवन इनटू माई कॉलेजेस वगैरह जब हमारा ग्रुप था एक 5-8 लोगों का, सो किसी को भी कुछ भी डिफिकल्टी आती थी, आई यूज्ड टू लाइक टू टीच देम बेसिकली. अकाउंटिंग हो गया, कुछ भी सब्जेक्ट्स हो गए. So that was again my good passion. So I again diverted from construction field marketing to the institutional field, जहाँ पे मैं जॉब कर रहा था. So जॉब करते करते then I thought यार
ये नॉर्मल पर्सनल ट्रेडिंग करने से बेटर अपन कंपनी फॉर्म करते, बिकॉज काम मुझे मिलने लग रहे थे ड्यू टू सीइंग माय वर्क, माय एबिलिटी ऑफ वर्किंग। एंड जो मैं काम कर रहा था, इट इज नॉट लाइक अ जॉब, बिकॉज मैं कहीं भी आज तक मैंने काम किया है, किसी के साथ भी काम किया है। काम दोस्तों ऐसे करो कि खुद का काम है समझ के करो। अगर आप वो समझ के करोगे ना, ट्रस्ट मी, यू कैन गिव योर बेस्ट इन टू दैट वर्क। अगर आप सोचोगे नहीं आई एम डूइंग जॉब, या मैं किसी दूसरे के लिए काम कर रहा हूँ, या मैं बिजनेस कर रहा हूँ, या कुछ भी XYZ, खुद का समझ के जब आप करोगे कोई भी चीज, देन सी द रिजल्ट्स। जस्ट ट्राई वंस। अगर आपको आपका दोस्त, आपके घर वाले, या कोई भी मेंटर्स हो गए, या आपके जॉब जहाँ पे कर रहे हो, किसी ने आपको टास्क दिया, ये आपको करना है, तो ये जब आप खुद का समझ के करोगे, द रिजल्ट्स आर ट्रिमेंडियस। बिकॉज इवन इन टू माई जॉब टाइमिंग, कभी कभी मेरा जॉब टाइमिंग भी अगर XYZ टाइमिंग था, लाइक 6 and 7, आई यूज्ड टू सिट टिल 9 and 10, कि मेरे हाथ का मुझे काम खत्म करने के बाद ही जाना। एंड दैट इज माई वन ऑफ द गुड थिंग टुडे ऑल्सो। इवन आर ऑफिस एम्प्लॉयज लीव्स अराउंड 6-6:30, मैं यहाँ पे 8-9-10 बजे तक काम करते रहता हूँ। मेरे सेशंस रहते हैं, मेरे कुछ एक्टिविटीज रहते हैं, क्लाइंटाइल मीटिंग रहता है, डोंट एवर पोस्टपोन इट, बिकॉज आई लाइक टू वर्क। एंड ये समझ लो दोस्तों, इट इज योर वर्किंग एज, वी आर इनटू द हॉट ब्लड। सो ये अपने को करना ही करना है। आफ्टर 10-15 ईयर्स जब सब कुछ चीजें बदल जाती है, जैसे एज ग्रोन अप होती है, शादी होती है, घर रहता है, सबका ख्याल रखना रहता है, एट दैट टाइम यू कैन नॉट थिंक कि मुझे अभी बिजनेस करना है, या मैं अभी ज्यादा भागने का सोच रहा हूँ। वो तब टाइम निकल जाता है। इट इज अ परफेक्ट एज। जो भी अभी बिलो 30s आप लोग हो, few would be 22, 24, 25, 26, any sort of thing. It is a right age, because आप पे I don't think so अभी 100% जवाबदारी घर की है, कि आपने कमाया तो ही आपका घर चलने वाला है, आपने पैसे दिए तो ही घर चलने वाला है। सो इट इज गुड ना। जितने भी ट्रायल एरर होने, लॉसेस होने, बैड लक्स आने, जितने भी बुरी चीजें होनी है ना, इट शुड बी बिलो आई वुड से 25, बिकॉज एट द एज ऑफ 28 and 30 यू कैन नॉट सो कि अभी मैं बिजनेस का स्टार्ट लेता हूँ, सोचता हूँ, करता हूँ। नहीं, वो टाइम निकल गया। दैट इज अ टाइम फॉर योर सेटलमेंट ऑफ योर लाइफ। मैंने आई एम हैप्पीली सेइंग, जितने भी मेरे लाइफ के गोल्स थे, कि बिफोर MBA मुझे ये चीज अचीव करनी है, एंड हैप्पीली बाय द हेल्प ऑफ गॉड्स ग्रेस दैट आर द थिंग्स हैव बीन अचीव्ड। अभी कुछ बड़े गोल्स है कि जो मुझे अगले 2-3 सालों में अचीव करने हैं। कमिंग बैक टू दिस, so AINSA Global, it's AAA ENSA, AINSA Global. This was a first firm कि जो मैंने मेरे फ्रेंड के साथ, who was my school time, actually sorry, college time friend, so we were friends from 10th itself. Today our friendship is almost around 7 to 8 years. And ठीक है, देखो ups and downs हर चीजों में रहते हैं, but हम दोनों साथ में आए एंड वी फॉर्म्ड अ कंपनी, डायरेक्टली LLP कंपनी हमने फॉर्म किया। सो AINSA ग्लोबल, बहुत लोग गलत ये स्पेल करते हैं। जितने भी दोस्तों अपने 7 कॉन्टिनेंट्स है ना दुनिया के, उसका फर्स्ट इनिशियल लिया है। एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, यूरोप, ये सब जो हमने कंबाइन किया, नॉर्थ साउथ अमेरिका, ये कंबाइन करके AINSA, ये हमने नाम सोचा एंड नाम रखा। सो अराउंड 2018 हमने AINSA स्टार्ट किया। We worked from home and co-working spaces. After immediate 2 to 3 months, we thought कि यार नहीं, अभी क्लाइंट के पास हम लोग विजिट करें, क्लाइंट को बुलाना जरूरी है। We took up the office in 2018 in शिवने वारजे area, which is again an industrial area. यहाँ पे ऑफिस लेने की जरूरत ऐसी थी कि यहाँ पे पूरा इंडस्ट्रियल एरिया, एंड देयर इज नो सिंगल फर्म who work into export, import and consultancy. So मैंने यहाँ पे फर्म डाल दी एंड ऑफिस मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। Immediately during around 1920 when I left the job, because COVID था, सब जगह जॉब के इश्यूज चल रहे थे, नो डाउट इनटू माय एम्प्लॉयमेंट देयर वाज सेम इशू, बट इशू मुझे पैसे नहीं मिल रहे थे इसके लिए नहीं थे, मैं लीव पे डाल दिया उन्होंने, बिकॉज अभी एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है, सो यू आर होल्ड ऑन टू 2-3 months। मैंने बोला यार ये तो टांगती तलवार है, पैसे तो चलो ठीक है नहीं मिले, बट दिन भर में मतलब खाली बैठ के करूँ क्या अभी। सो एट दैट टाइम मैंने सोचा चलो ऑफिस में अपन, मैंने मैक्सिमम गाइस 2 days में मैंने डिसीजन ले लिया कि जो इंस्टीट्यूट में मैं काम कर रहा हूँ, आई एम रेडी टू रिजाइन। ज्यादा कुछ अपने पास सेविंग्स इतना कुछ था नहीं, बिजनेस एक साइड से चल रहा था। ओके, इन 1920 वी सफर्ड अ ह्यूज लॉस, एंड यू गाइस वोंट बिलीव, इट इज नॉट हिडन फ्रॉम इवन आनंद सर, ही आल्सो न्यूज इट।
So the loss was around 1 crore 28 lakh rupees because हमने तब दुबई मार्केट 19 में स्टार्ट किया था एंड हमारे एक कलीग को वहां पे रखा. सो इंटरनल उसने कुछ ट्रांजैक्शन के लफड़े कर दिए एंड गाइस द लॉस वाज 1 crore 28 lakh rupees. एंड वो टाइम इवन अपने MBA के एग्जाम भी चल रहे थे. सो एवरीथिंग वाज एट अ टाइम. सो जब लॉकडाउन लगभग लगने लगा into 20 आई वाज इनटू लॉसेस. नवंबर दिसंबर में लॉसेस हो गए. 20 में लॉकडाउन लग गया तो जॉब का भी इशू होने लग गया एंड द थिंग वाज एवरीथिंग वाज कोलैप्स्ड कि जहां से हमने 18 में स्टार्ट किया वहीं पे आके खड़े रह गए. आई टुक इट गाइस पॉजिटिवली. ओके, मैं आज भी किसी को ये नहीं बोलता हूँ कि मेरा 1.25 करोड़ का लॉस हो गया. मैं क्या बोलता हूँ, भाई 1.25 करोड़ का मुझे एक्सपीरियंस है. जो चीजें ओके जो मिस्टेक्स मैंने वो टाइम पे गाइस रिपीट की ना वो वापस नहीं होगी. सो दिस वर माय आई वुड से टीचिंग फीस या कंसल्टेशन फीस थी कि जो मैं एक फ्रॉड से गया या लॉस मेरा हो गया. दैट गेव अ गुड पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट इनटू माय एंड माय पार्टनर्स लाइफ. 20 में जैसे मैंने रिजाइन किया इनटू मार्च अप्रैल 2 दिन में डिसाइड किया अपनी इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर दी, एंटरप्रेन्योर इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड. सो इनिशियली हमने पूरा डिजाइन किया एंड मैंने तब भी सोच लिया EIFT की स्थापना हो गई है, आइंसा को वापस ऊपर लेके जाना है. 1 साल में रेवेन्यू एक्सपेक्ट ही नहीं करूंगा फ्रॉम EIFT. द गुड पॉइंट मैंने यहाँ पे क्या किया, जो अपने कॉलेज के मेरे कुछ कलीग्स थे दे वर सर्चिंग जॉब्स. अभी बीइंग माय गुड फ्रेंड आई कैन ट्रस्ट देम एंड इवन दे कैन ट्रस्ट मी. मैंने 2-3 मेरे अगेन जो कलीग सर्कल में थे मैंने 2-3 लड़की को हायर कर लिया. जो मैंने जॉब छोड़ा था मैंने वो लोगों को भी नाराज नहीं किया. मैंने वहां से निकलते निकलते भी मेरा जो और एक कलीग था सो मैंने उसको वहां पे लगा दिया, उसको पूरा ट्रेनिंग दिया, उसको वहां पे लगा दिया. सो जॉब वाला बंदा भी दुखी नहीं था एंड इवन मेरा काम भी चल रहा था. सो मीन टाइम 1 साल आई एक्सपेक्टेड कि मुझे इसमें से EIFT से मुझे रेवेन्यू आने नहीं वाला है. जस्ट अप्रोक्सीमेटली मंथली एक्सपेंस इतना है, इतना अर्निंग होना चाहिए, जितना अर्निंग होगा आई नीड टू पंप इन मनी. दोस्तों ये समझ लो जब भी आप पैदा होते हो ठीक है आपको चलने में भी ना लगभग 2 से 3 महीने 6 महीने साल भर लग जाते. यू स्टार्ट क्रॉलिंग. आफ्टर दैट आप थोड़ा थोड़ा चलना सीखते हो, हाथ पकड़ के चलना सीखते हो. उसके बाद थोड़ा थोड़ा चलना सीखने के बाद एट एज ऑफ अराउंड आप पकड़ लो कि जब आप थोड़ा सा चलना सीखते हो अराउंड एज ऑफ 4, 5, 6 आप पकड़ लो आप प्रॉपर थोड़ा सा भागना जानते हो, पूरा भाग नहीं सकते हो एंड एट अ गुड एज आप तब भागने लगते हो. सो ये दैट इज माय ओन क्रिएटेड डायलॉग. ओके, सो ये अगर इतना प्रोसेस है तो जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करो ना डोंट एक्सपेक्ट यार मुझे पहले महीने से ना मुझे लाखों रुपए कमाने, मुझे 50,000 कमाने, मुझे 25 कमाने, मुझे करोड़ों कमाने. नहीं यार, बिजनेस है. बिजनेस में इट इज इम्पोर्टेंट कि कौन कितना बिजनेस कर रहा है ना दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, या कितना पैसा कमा रहा है शॉर्ट टर्म में दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. इट इज इम्पोर्टेंट कौन लास्ट तक चल रहा है. लाइक विसे ना कि कौन सा घोड़ा है भाग रहा है इसको इम्पोर्टेंट नहीं है, पूरा रेस लास्ट तक कौन भाग रहा है और उसके बाद भी भागते रह रहा है दैट इज इम्पोर्टेंट. द बेस्ट थिंग वाज नोकिया, सैमसंग. नोकिया ने पूरा मार्केट डिसरप्ट कर दिया था बट जैसे सैमसंग आया मार्केट में आज दोस्तों किसका नाम है, सैमसंग का है, नॉट अ नोकिया थिंग. ओके, सो इट इज इम्पोर्टेंट कि जब भी आप कोई बिजनेस के बारे में सोचो ना, ये बेसिकली हमारे में एक कहावत है, व्हेन यू स्टार्ट अ बिजनेस यू शुड रन योर बिजनेस फॉर 999 days. दैट इज 1000 days आप आपका बिजनेस स्टार्ट करो एंड इफ यू सर्वाइव योर बिजनेस फॉर 1000 days, ट्रस्ट मी ऑन 1001 day you would be into profit. कोई भी हैबिट आप पकड़ लो, अगर आप 21 दिन करते हो कोई भी हैबिट, अच्छी बुरी कोई भी होने दो, यू डू दैट हैबिट फॉर 21 days, 22nd डे आपको वो ऑटोमेटिक हैबिट आपका इनहैबिट ही होने वाला है. सिमिलर फॉर बिजनेस, अगर आप ऑल अप्स एंड डाउन्स में से 999 days बिजनेस अगर आप सर्वाइव करते हो सो ऑन 1000 डे और ऑन 1001 डे आपका बिजनेस प्रॉफिट में रहने वाला है. यस, किसी को कुछ बोलना है प्लीज. Okay, so I would again say कि think of the business. मैं आपको आगे कुछ आइडियाज दूंगा surely. So we expanded AINSA in Dubai 2019 and last year हमने ईरान एंड टर्की 2021 में भी expanded our business operations over there. हमने बहुत सारी चीजें import में start कर दी.
And the last line, as I said, suffered huge loss into 2020, but that never stopped us. घर से प्रेशर था, बाहर से था, we were having legal cases onto us, so business was onto total collapse. But we took it positively कि यार नहीं ठीक है, इतना बिजनेस कर सकते हैं तो इतना रीपेमेंट तो कर ही सकते हैं. So that was a good point. And around पिछले साल ही in 21 हमने लगभग पकड़ लो 1 साल में पूरा अमाउंट रिकवर भी कर लिया, दूसरे कंट्रीज में ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया. एंड टुडे वी आर डूइंग गुड एंड वी आर जस्ट थिंकिंग कि हम लोग और बिजनेस ऑपरेशंस कैसे कर सकते हैं. इवन इनटू लास्ट मंथ इटसेल्फ आई हैव ट्रैवल्ड टू दुबई, सो दैट वाज माय फर्स्ट इंटरनेशनल टूर. ओके, एंड अपकमिंग अभी जैसे मेरी फर्स्ट जर्नी स्टार्ट हो गया, आई हैव केप्ट अ टारगेट कि यार साल में मुझे 2 कंट्री विजिट ही करना है, घूमने भी जाना है, वहां से बिजनेस भी लेके आना है, खाली घूमने जाके मुझे मेरे पैसा बर्बाद नहीं करना है. ओके, सो दैट इज माय टारगेट कि यार ये साल अभी दुबई तो पहला कंट्री हो गया. मैं आई वाज देयर फॉर लगभग, आई वाज अलोन गाइस, किसी के साथ नहीं गया था, ना किसी ने मुझे आइडिया दिया था. पार्टनर ऑलरेडी जा चुका था वहां पे, नो डाउट, बट दैट वाज अगेन अ चैलेंजिंग थिंग कि आप दूसरे देश में अकेले जा रहे हो, खुद का खाना बनाना है या बाहर से भी खाना है, कुछ भी हो, आपको खुद को अकेले रहना है. सो आई फाउंडेड आउट माई ओन हॉस्टल. ज्यादा मैंने खाने पीने पे खर्चा नहीं किया. आई यूज टू गो वॉकिंग एवरीवेयर, बिकॉज अगर मैं दिन का 2 टाइम का या 1 टाइम का भी बाहर खाने जाऊँ ना दोस्तों, दुबई इज अगेन अ कॉस्टलीस्ट सिटी. आई डोंट नो कितने लोगों को मालूम है या नहीं, इट इज अगेन अ कॉस्टलीस्ट सिटी. सो 1 टाइम मील कॉस्ट यू अराउंड 500 to 600 इंडियन बक्स, बिकॉज वहाँ का 1 दिरहम मतलब इंडिया का 21 रुपीज है. So I was keen on saving money because it was my first tour and I just can't spend on madly into that. Okay, so that was my first tour. Again ये साल 100% I am sure कि second tour भी मेरी मुझे करनी है at any cost. So this was all about me. So moving ahead. So अगर किसी को ऐसा लगता रहेगा यार ये कुछ भी एग्जाम्पल दे रहे, मालूम नहीं सच में ये करण ने कुछ अचीव किया है या नहीं किया है, बहुत लोगों के दिमाग में डाउट होगा. बट चलो, नॉट ओनली मी, these are the few examples. If possible you can just take a screenshot for this or you can just click a photo for this. Okay, ये दोस्तों मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जो आपके और मेरे एज को ही रिलेट करते हैं. They have successfully founded their company. Below 25 ये सब कैटेगरी वाले लोग हैं. ओके, 2-3 बंदे आपको मिलेंगे who would be about 25, not a big deal into that. बट अगर आप देखोगे राइट फ्रॉम 12-13 years ऑफ एज, 1 नंबर पे मैंने लिखा है तिलक मेहता, who was also podcasted into विवेक बिंद्रा शो. He is a founder of Paper and Parcels. आप सोचो 13 साल का लड़का who can set up a company and within a year उसका प्रॉफिट लगभग आफ्टर गिविंग ऑल अवे रेवेन्यूज ही वाज इनटू नेट प्रॉफिट ऑफ 40 to 50 लाख रुपीस. ओके, जस्ट इमेजिन 13 साल का लड़का यार. 13 साल में आप और मैं क्या कर रहे थे, बस स्कूल घर खेल रहे थे एंड कुछ एक्टिविटीज लगा के रखे थे हमने. अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक सो कि 13-14 में किसी ने कुछ किया होगा. आई थिंक हार्डली देयर वुड बी 1 or 2 स्टूडेंट की जिसने 13-14 में वर्किंग स्टार्ट किया होगा. सो देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल गाइस. सो ऐसे नहीं कि मैंने कुछ बड़ा तीर मारा है, बट बड़ा तीर क्यों मारा, बिकॉज मैंने गोल्स एंड विजन वैसे रखे कि अगर ये मतलब ये तो जस्ट दोस्तों मैंने 10 नाम ढूंढ के लिखा मतलब निकाले हैं कि जिनकी स्टोरी मैंने नजदीक से देखी है, इनको इवन मैं एडमायर करता हूँ. इट इज नॉट, एज आई सेड, इट इज नॉट अगेन नंबर एज नंबर कुछ नहीं है दोस्तों. इट इज जस्ट ऑन योर थिंकिंग एंड कैपेबिलिटी. आप क्या सोचते हो, क्या देखते हो, कैसे सराउंडिंग में रहते हो, कैसे वाइब्स में आप रहते हो. ओके, सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड आई वुड से कि एज पर माई एक्सपीरियंस, आपके फ्रेंड्स जो है ना, दीज आर द मोस्ट प्रैक्टिकल ड्राइवर्स फॉर यू. आप सोचो ना, अगर आपके मम्मी पापा ने एक चीज बोली आपको नहीं करना है, यू डोंट टेक इट सीरियसली. कोई कोई बच्चे ले लेते हैं, बट अगर आपके फ्रेंड ने बोला नहीं भाई तू ये कर ही, भले आपकी फ्रेंड में लड़की रहने दो या लड़का रहने दो, अगर वो आपको बोलता है बोलते नहीं ये तुझे करना ही है, ये तुझे करना ही है, भले आपका मन रहने दो नहीं रहने दो, यू टेंड इनटू डूइंग दैट.
फिर वो सही है गलत है आपको बाद में समझ में आता है। सो फ्रेंड्स भी चुनो ना तो यार हीरे जैसे फ्रेंड चुनो। एक तो आप सबके काम में आओ, या आपके आजू बाजू में 4 ऐसे फ्रेंड्स होने चाहिए ना जो आपके काम में है, ठीक है। सो दीज आर अगेन द 10 आई वुड से स्टूडेंट्स हुआ अंडर 25। जैसे तिलक मेहता आई सेड, ही इज अ फाउंडर ऑफ पेपर एंड पार्सल्स। सो बेसिकली एक ये कुरियर कंपनी है जिसने जो मुंबई के डब्बे वाले हैं या गुजरात महाराष्ट्र के साइड है, इवन जो कुरियर कंपनीज है, इसके साथ इसने टाई अप करके टाइमली एंड फास्टेस्ट डिलीवरी ही हैज अरेंज विद द लोवेस्ट पॉसिबल रेट। ओके, आफ्टर दैट त्रिशनंत अरोरा हु इज फॉर फाउंडर ऑफ टैक्स सिक्योरिटी सॉल्यूशंस। सो इसने कुछ इनोवेशंस लाके सिक्योरिटी सॉल्यूशंस को थोड़ा सा मॉडिफाई किया एंड ही लॉन्च्ड हिज सिक्योरिटी सिस्टम्स। ऐसे बहुत सारे, आई वुड नॉट गो इनटू ईच एंड एवरीवन डिटेल्स, बट जैसे श्री लक्ष्मी सुरेश है फॉर ई डिजाइन एंड टाइनी लोगो विच इज फॉर कंपनी यूज, लाइक फरहाद एसिड वाला फाउंडर ऑफ रॉकस्टार मीडिया जो बैंड्स एंड ये सब चीजें प्रोवाइड करते हैं लाइक कॉन्सर्ट्स एंड ऑल द स्टफ। रोहित कश्यप मेट्री स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस लेसन्स एंड अलग अलग चीजें वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं। श्रवण एंड संजय कुमार, these are the two basically real brothers who have founded Go Dimensions which is again into IT engineering field थोड़ा सा। फिर किंग सिद्धार्थ फाउंडर ऑफ फ्रेंड्स, ये एक सोशल मीडिया ऐप है। अर्जुन राव, आफ्टर दैट अद्वैत ठाकुर, अखिलेंद्र साहू, these are the मतलब ये लिस्ट, दिस इज एन अनएंडिंग लिस्ट दोस्तों। बट जस्ट थिंक यार अगर ये 10 बंदे कर सकते तो यार मैं क्यों नहीं कर सकता? इनके पास तो अलग कुछ ऐसा है नहीं, 2 दिमाग 4 पैर ऐसा तो कुछ है नहीं। इनके पास जितना है उतना ही मेरे पास है एंड आई एम द बेस्ट अपार्ट फ्रॉम दैट। जस्ट मैं मेरा बेस्ट कहीं पे यूटिलाइज नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ, तो यार ये 10 का नाम आ सकता है तो मुझे भी मेरा नाम लाना ही है कहीं पे। जस्ट कीप दैट टारगेट इनटू दैट। कोई भी चीज करो ना, डोंट एवर कॉपी एनीवन, जस्ट डू योर बेस्ट इनटू दैट फील्ड कि आपको बेस्ट में से बेस्ट ही वहां पे करना है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो ये कुछ आइडियाज दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ, लाइक विदाउट इन्वेस्टमेंट हाउ यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस। अगर आप पेन डाउन कर रहे हो तो यू कैन पेन डाउन और यू कैन जस्ट टेक अ लाइक स्क्रीनशॉट फॉर योर मोबाइल। अगर आप सच में इंटरेस्टेड हो कि यस मुझे आज से अभी से मुझे कुछ तो स्टार्ट करना है, सो विदाउट इन्वेस्टमेंट यू कैन स्टार्ट अ गुड बिजनेस। लाइक कोई भी आप प्रोडक्ट दिमाग में ले लो, कोई भी आपके यहाँ पे दुकानदार होगा, डीलर होगा जो कि अच्छे प्राइस में आपको कुछ चीज दे रहा है, और इफ यू आर मेकिंग योर ओन थिंग, हाउ यू कैन सेल ऑन मिंत्रा हो गया, मेशो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ईबे, शॉपिफाई, इवन जियो हो गया। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो आपको रीसेलिंग के ऑप्शन देते हैं। मेशो वाज अ गुड प्लेटफॉर्म बेसिकली, सॉरी इट इज अ गुड प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप कोई भी अगर डिस्ट्रीब्यूटर एज अ कंपनी आपको रजिस्टर करना वहां पे लगता है, नो डाउट इनटू दैट, बट कोई भी डीलर के अगर आप प्रोडक्ट लेते हो ऑन टू दैट हो गया, शॉपिफाई हो गया, इवन ऑन ईबे, यू कैन रीसेल इट टू एनीवन। जैसे अगर वहां पे लिस्टिंग है कि अगर मैं कोई मोबाइल कवर 100 रुपए को दे रहा हूँ एंड इफ यू वांट टू सेंड दैट कैटलॉग टू योर फ्रेंड, तो आप सेम कैटलॉग भेज सकते हो। ऑर्डर मेरे से जाएगा बट यू वुड बी द सेंडर, मेरे डिटेल्स कहीं पे नहीं रहेंगे, यू वुड बी एडिंग योर मार्जिन। आपका पैसा आपको आ जाएगा, डीलर को डीलर का पैसे जाएगा, आपका दोस्त या कोई भी वेंडर रहेगा उसको दिखेगा आपने माल भेजा, मेरा नाम कहीं पे डिस्क्लोज नहीं होगा। सो अलग अलग वेबसाइट्स पे ये फैसिलिटी भी आपको अवेलेबल है। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं होगा, यू कैन टेक अ ट्रेंडिंग प्रोडक्ट फ्रॉम दैट लिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर उसमें से ढूंढो कि सबसे कम कॉस्ट में कौन दे रहा है, आपको पैसे तो लगाने नहीं है। जो फोटोग्राफ्स आपके पास है या उसके जो फोटोग्राफ्स है वही आपको आपके पोर्टफोलियो पे डिस्प्ले करना है। ऑर्डर आती है तो डायरेक्टली ऑर्डर आप बंदे को दे सकते हो एंड आपका काम हो जाता है। ओके, सो दिस इज अ गुड B2B एंड B2C प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप बढ़िया से बढ़िया काम कर सकते हो। द सेकेंड इंपॉर्टेंट इज क्लाउड किचन एंड होम बेस्ड फूड डिलीवरी थ्रू स्विगी, जोमेटो एंड मैजिक थिंग। हमारे बेसिकली क्लास में एक मेरा फ्रेंड था ओमकार जोशी करके। सो जनरली हमने ऐसे एक बार डिस्कस किया था कि अरे ही इज अ गुड कुक, ओके गाइस। सो उसका खाना बहुत मतलब बढ़िया बना था वो बंदा खाना। सो वंस ऐसे हमने बात करते करते जनरल डिस्कस किया, नहीं क्लाउड किचन मैंने मेरे कलीग से सुना था, मीन्स वन ऑफ माय
Supplier told me that he is entering into cloud kitchen. तो मैंने बोला यार ये रहता क्या है? So दोस्तों क्लाउड किचन आई थिंक कुछ लोगों को क्लाउड स्पेस जैसे मालूम रहेगा. Similar it is a type of a cloud kitchen. So आपको एक्चुअल होटल स्पेस लेके नहीं बैठना है. You just need a digital kitchen and digital space to just show to your partners, to show to your consumers, and after showing them आपको जनरल ऑर्डर्स आने लग जाते हैं. सो आप आपके घर पे बनाओ या कोई बाहर से अगर आप बना के ले रहे हो वो लेके आपको डिलीवर करना है. ओके, लेट्स से बेस्ट एग्जांपल, अगर मैं मेरे घर पे हूँ एंड पकड़ लो मुझे मैगी बनाना बहुत अच्छा लगता है, मैगी एंड पास्ता, एंड इट इज अ गुड मींस आई एम टेलिंग यू अ जेन्युइन फैक्ट. मुझे भी कुकिंग की बहुत हॉबी है. मैं खुद अलग अलग डिशेस बनाते रहता हूँ. महीने में 1-2 चीजें तो मैं कुछ ना कुछ डाल के इन्वेंट करते रहता हूँ, let it be good or bad. So this is a concept basically कि आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो ना, आप वो चीज बनाओ, उसके फोटोज अपलोड कर दो ये ऑन स्विगी, जोमेटो, मैजिक पिन जो फूड डिलीवरी एप्स है, एंड आपको जैसे ऑर्डर आती है तो आप घर से भी खाना डिलीवर कर सकते हो. आपको पैकिंग अच्छा रखना है, देयर शुड बी अ गुड प्रेजेंटेशन, एंड आपको अच्छा प्रेजेंट करके प्राइसिंग अच्छी रखनी, तो आप घर से भी क्लाउड किचन स्टार्ट कर सकते हो. आई थिंक कुछ यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स ऐसे रहेंगे कि जिनको खाना बनाना बहुत ही अच्छा आता है. सो यू कैन थिंक अबाउट दैट कि आप घर पे ही यू कैन जस्ट रन ऑन सैटरडे संडे ऑल्सो. इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको पूरा हफ्ता ही स्टार्ट करना है. सो जैसे कमिंग बैक टू द पॉइंट, जैसे मैंने ओमकार का बोला तो मैंने उसको क्लाउड किचन का बोला, एंड लास्ट ईयर इटसेल्फ अराउंड आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली अक्टूबर नवंबर में यार उसका फोन आया, उसका ब्रोशर पैम्पलेट उसने मेरे को भेजा कि भाई मैंने ऐसे ऐसे स्टार्ट किया है, एक बार देख लेना सब कुछ कैसा लग रहा है, क्या है, कुछ होगा तो मेरे को सजेस्ट करना. एंड आई वाज मोर देन हैप्पी बिकॉज उसने कमेंट क्या डाली मुझे, करण भाई आपने सजेस्ट किया, आपने आइडिया दिया यार, सच में मेरे को आपने उस दिन मोटिवेट किया, बट आपका सुन के मुझे 3-6 महीने बाद लगा सब रिसर्च करके देख के यार नहीं आपने जो मुझे गाइड किया था सही किया था, मुझे तब भी स्टार्ट करना चाहिए था. एंड ही इज डूइंग गुड. बेसिकली वो पहले फुल टाइम चलाता था, नाउ ही इज वर्किंग विद वन गुड कंपनी बेसिकली एज अ शेफ, एंड सैटरडे संडे खुद का किचन भी चला रहा है. सो यू कैन थिंक इनटू दैट. सिमिलरली कुछ यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट ऐसे भी रहेंगे जो हम घर पे पेस्ट्रीज, केक्स, चॉकलेट्स ऐसे अलग अलग आइटम बनाते छोटे बड़े. आजकल जार केक्स वगैरह बहुत कुछ अच्छे आइटम्स निकलने लगे. सो यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन टू दैट थिंग. इट इज योर हॉबी गाइज. मैं वापस बोल रहा हूँ, आपके जो हॉबीज है वही आपको, पैशन जो आपके है वही आपको बिजनेस में टर्न करना है. इसमें पैसा मिल रहा है इसलिए मुझे इसमें जाना, ऐसा मत करो. किसी को चॉकलेट्स बनाने अच्छे आ रहे, किसी को रोल्स बनाने अच्छे आ रहे, किसी को पेस्ट्रीज बनाने अच्छे आ रहे. यू डोंट हैव एनी इन्वेस्टमेंट. जब भी आपको ऑर्डर आएगा आपके पास सामान है, आपको बनाना है और आपको डाल देना है. नाउ डोंट से कि मुझे यार सामान परचेस करने में बहुत सारा पैसा लगेगा. आई इवन मेक चॉकलेट्स ओके फॉर पर्सनल यूज, नॉट फॉर बिजनेस यूज. तो चॉकलेट्स को आपको सामान कितना लगता है, एक हार्डली व्हाइट बार लगता है एंड एक ब्लैक बार लगता है, दैट इज अ डार्क कंपाउंड एंड व्हाइट कंपाउंड. इट कॉस्ट यू हार्डली 100 and 120 रुपीज. तो 200-300 रुपए का आप अगर नॉर्मल खाना पीना खर्च कर सकते हो तो वो लाके मटेरियल घर पे रख दो. सेकेंड, यू नीड अ ओवन और अ गैस. यू नीड अ फॉइल पेपर टू कवर दोज थिंग्स. यू नीड अ मॉलेट बेसिकली कि जिसमें आप वो चॉकलेट कंटेंट पोर कर सको. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स. जस्ट थिंक फ्रॉम योर हेड. गूगल आपके पास है, रादर सिटिंग ऑन टू फेसबुक एंड ऑल सोशल मीडिया एप्स, जस्ट सर्च ऑन यूट्यूब कि आप नया नया क्या कर सकते हो. There are lot of business idea onto the Facebook videos as well as YouTube videos also. कितने सारे. Start your own YouTube channel. अगर आप कुछ भी बनाते हो, ज्यादा नहीं, हफ्ते में एक वीडियो बनाओ. अगर आप घूमने जा रहे हो, खाली अच्छा वीडियो बनाओ, पोस्ट ऑन टू द यूट्यूब पे आप पोस्टिंग स्टार्ट करोगे ना, आफ्टर 3 to 6 मंथ अगर आपका व्यूअर्स ज्यादा है, यूट्यूब से भी आपको इनकम स्टार्ट हो जाएगा. जो आप रील्स बनाते हो वहां से आपको इनकम स्टार्ट हो जाएगा. पोस्ट ऑन टू एवरी सोशल मीडिया, बट यूज सोशल मीडिया फॉर अ गुड कॉज. फ्रैंकली मैं आज प्राउडली कहता हूँ मुझे इंस्टाग्राम आज भी यूज करने नहीं आता है. आई एम स्टिल लैकिंग माई डिजिटल मार्केटिंग नॉलेज. मैं सीख रहा हूँ वो, बट आज भी मैं सोशल मीडिया पे गाइस ज्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ. माई फेसबुक अकाउंट इज हैंडल्ड बाय माई वन ऑफ आवर डिजिटल मार्केटिंग टीम, जहाँ पे वो पोस्टिंग करते रहता है. आई एम नॉट ऑन टू द इंस्टाग्राम. व्हाट्सएप भी दिन में मैं हार्डली 1-2 बार ही चेक करता हूँ. भाई काम करते हुए इतना टाइम ही नहीं है अपने पास. सो अगर आप घूमने कहीं जा रहे हो,
मेक शॉर्ट वीडियोस रील्स, यूट्यूब पे चैनल बना के प्रमोट कर लो. ओके, चॉकलेट वॉकलेट बना के आप कुछ बनाना अच्छा अगर आ रहा है तो क्लाउड किचन स्टार्ट कर दो. थर्ड पॉइंट इज स्टार्ट विथ फोटोग्राफी सर्विसेज. बहुत सारे लड़कों लड़कियों के पास आईफोन रहेगा. मैं आज कितने लोगों के पास आईफोन है यहाँ पे? प्लीज गाइज आंसर, किसके पास आईफोन है यहाँ पे? एंड आई एम श्योर आउट ऑफ 70 पीपल यहाँ पे 5-6 लोगों के पास तो आईफोन होगा ही होगा. यार कोई नहीं जिसके पास आईफोन नहीं है? नो वन इनटू दिस? Anyone there? Yes, who's this? Please take यस सर, मेरे पास है. ओके, हर्षल जी आपके पास है. यार आपकी तो पूरी मतलब क्या है, चांदी है. फिर आपके पास आईफोन है यार. मेरे पूरे- पास भी है सर. कौन है आपका चांदी नहीं नाम? है सर. नाम लेके बात कीजिए प्लीज. सर सुजाता यो. ओके, सुजाता मैम, ग्रेट. और किसी के पास नहीं? ओनली 2 कैंडिडेट्स हैविंग आईफोन. हर्षल जी, सुजाता जी. ओके, हर्षल जी आप क्या करते हो? सॉरी सर, समझ में नहीं आया. आप क्या करते हो? यू आर वर्किंग समवेयर? नहीं सर. ओके, तो आप क्या करते हो फिर? जस्ट अ कॉलेज अभी स्टूडेंट? फिलहाल तो मैं सर कॉलेज कर रहा हूँ और मेरा फोटोग्राफी का हॉबी है तो मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ सर. ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. एंड सुजाता मैम? यस, सुजाता जी आप बात कर सकते हो. यस सर, मैं भी गोयल गंगा में जॉब करती हूँ सर, एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव. ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. सो यहाँ पे अगर जैसे दोस्तों अपन ने देखा कि 2 बंदों के पास आईफोन है. आईफोन इज गुड फॉर फोटोग्राफी. सो माय पॉइंट वाज टू से दैट इटसेल्फ कि जैसे हर्षल भाई ने बोला कि यार मेरे पास आईफोन है, आई एम फॉलोइंग माय फोटोग्राफी. दैट इज अ गुड यूज, नो डाउट इनटू दैट. वेयरएज सुजाता मैम ऑलरेडी गोयल गंगा में काम कर रही है. दैट इज ऑल्सो गुड थिंग. सो यू शुड सी इनटू योर सराउंडिंग्स. मुझे यही बोलना है, अगर आपके पास अच्छा मोबाइल है, फोटोग्राफी आपको पसंद है, तो डू फोटोग्राफी सर्विसेज. यू गेट अ लॉट ऑफ, आई वुड से उससे भी मतलब आपको बहुत अच्छा पेइंग जॉब है ये फोटोग्राफी सर्विसेज. जिनको अगर नहीं मालूम है, जस्ट सर्च ऑन टू द गूगल. आजकल बहुत सारे फैसिनेशन निकले हैं फोटोग्राफी सर्विसेज के लिए. आफ्टर दैट डीएम सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज. आप जो जनरल फोटो निकाल के सोशल मीडिया पे पोस्टिंग करते हो, रादर कोई कंपनी का डिजिटल मार्केटिंग ले लो, उसके पोस्ट आप उसके सोशल मीडिया पे प्रमोट करो यार, 2 पैसे आपको ज्यादा ही मिलने वाले. सिमिलरली इवेंट मैनेजमेंट, जिनकी मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी है, यू कैन गो इनटू द इवेंट मैनेजमेंट. आपको कुछ करना नहीं है वहां पे. जब आपको ऑर्डर मिलेगा, यू गेट अ एडवांस पेमेंट. इवन मैंने भी इवेंट मैनेजमेंट फील्ड में लगभग 6 महीने मैंने काम किया है. आई हैव डिजाइन फॉर बर्थडे पार्टीज, मैरिजेस, बट नियर बाय. ज्यादा प्रोफेशनल मैंने किया नहीं, बिकॉज इट वॉज जस्ट अगेन हॉबी एंड अ पैशन. इट वॉज जस्ट अ ट्रायल फॉर मी. सो उसमें आपको वापस पैसा नहीं लगाना है. यू जस्ट शुड हैव अ गुड क्रिएटिविटी कि अगर मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया जाए तो सबसे ज्यादा मैं इसको डेकोरेटिव कैसे बनाऊं, थीम बेस्ड ज्यादा कैसे बनाऊं. सो दैट इज ऑल्सो गुड अर्निंग सेंस. मेकअप आर्टिस्ट सर्विस. इवन जो लड़कियों को सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं अपना, हर एक लड़कियों को सजना संवरना पसंद है. सो जिसको ज्यादा ये पसंद है, यू कैन गो इनटू द मेकअप आर्टिस्ट सर्विस. कुछ लड़के भी मैंने ऐसे देखे. इट इज नॉट अ याक एंड यूक थिंग. इवन इफ यू गो इनटू द मूवी इंडस्ट्री और सीरियल इंडस्ट्री, मैक्सिमम मेकअप आर्टिस्ट वहां पे बॉयज ही रहते हैं एंड दे आर अर्निंग इनटू लैक्स ऑफ रुपीज. ओके, सो ऐसा नहीं कि ये काम खाली लड़कियों का है. सो जिसको सजना संवरना सबसे ज्यादा पसंद है, लड़के हो गए लड़की हो गए, यू कैन गो इनटू दिस सर्विसेज. सेकंड, यहाँ पे बहुत सारे लोग फिटनेस ट्रेनिंग्स, लाइक बहुत सारे लोग या लड़के लड़कियां जिम को जाते रहेंगे, योगा प्रैक्टिस करते रहेंगे, एक्सरसाइज करते रहेंगे. यू कैन थिंक ऑफ बिजनेस इनटू दैट. सोशल मीडिया पे पेज बनाओ. ऑन टू फेसबुक यू कैन क्रिएट अ सिंगल पेज. लिंक्डइन पे एक पेज बनाओ, इंस्टाग्राम पे पेज बनाओ, सब जगह प्रमोट करो. ऑनलाइन योगा, ऑनलाइन एक्सरसाइजेस, ऑनलाइन फिजिकल जिम. कोविड में जब जिम बंद थे यार, ये लोगों ने सबसे ज्यादा पैसा बनाया. वन ऑफ माई कलीग इज देयर, मेरी फ्रेंड है अस्मिता करके. शी इज हैविंग 11 इंटरनेशनल क्लाइंट. खाली योगा सेशन 45 मिनट्स खाली देती है रात को. शी इज अर्निंग 85,000 to 1 lakh rupees मंथली. शी इज इनटू मार्शल आर्ट्स एज वेल, बट योगा सेशंस वो दे रही है 11-12.
खाली 11-12 लोगों को। सो ये पेजेस आप बनाओ ऑनलाइन, इट इज जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे तो आपका पैसा भी नहीं जाना है। सोशल मीडिया पे पेजेस बनाओ, सब जगह प्रमोट करो, हर एक ग्रुप में पोस्टिंग करो सब चीजों की। प्रमोट एवरीवेयर, प्रमोट ऑन टू इंटरनेशनल बिजनेस वेबसाइट्स ऑल्सो। आपको क्लाइंट आते जाएंगे, एंड आपको चलो एक क्लाइंट भी मिला, आपकी खुद की भी एक्सरसाइज हो रही है, सामने वाले की भी हो रही है, सो हेल्थ इज ऑल्सो गुड, मीनवाइल यू आर अर्निंग अ गुड अमाउंट। ओके, सो गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। जो मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला कि काम यही करो जो आपका माइंड कह रहा है, जस्ट डोंट रन बिहाइंड द मनी। ये या ये मुझे अच्छा पैसा मिल रहा है, ये काम करके मुझे अच्छा सैलरी मिलेगा, ये काम ये बिजनेस करके अच्छा पैसा मिलेगा तो करना है। जस्ट डू व्हाट योर माइंड सेज एंड जस्ट डोंट रन बिहाइंड द मनी। आप पैशन एंड हैबिट आपकी फॉलो करो, जग मार के पैसा आपको आना ही आना है। ओके, सो अगर आपका फ्रेंड का अच्छा ग्रुप रहेगा, सो यू कैन स्टार्ट विद द फूड स्टॉल्स। आप एग्जीबिशन में स्टॉल लगा सकते हो। मैंने खुद 3 महीने जूस का स्टॉल लगाया। आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ टू ऑन टू दैट। यू जस्ट नेम द थिंग। अच्छे खराब मैंने सब काम ऑलरेडी हैव डन इनटू दैट। छोटे से छोटा काम भी मैंने किया। इट इज नॉट लाइक कि आज जो कुछ हो आई एम सिटिंग ऑन टू दिस टेबल। इवन आई हैव डिलीवर्ड पेपर। सुबह जाके पेपर भी डिलीवर मैंने किया हुआ है, जस्ट फॉर माई एक्सपीरियंस। ट्रेन में जाके खाना भी मैंने बेचा है, मैंने थैला भी लगाया। ओनली थिंग इज अकेले मैंने ये किया नहीं है। आई कैन प्राउडली से कि मैंने कलीग को लेके किया, हु इज टुडे माय पार्टनर। सो इज बेसिकली हम कोई भी काम करते तो साथ में करते, बट बिजनेस आइडिया मुझे ज्यादा आते। सो माय मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एंड मार्केटिंग स्किल्स ये मेरी अच्छी है, बाकी टेक्निकल ऑपरेशन डॉक्यूमेंटेशन स्किल उसका अच्छा है। बट ये मैंने देखा कि यार मेरा वीकनेस ये है एंड उसका वीकनेस है, वी कैन कम टुगेदर एंड डू एनी सॉर्ट ऑफ थिंग। सो ऐसा कुछ नहीं कि मैंने लाइफ में काम किया नहीं, ये छोटा काम है बड़ा काम है, आई हैव डन एवरीथिंग। केटरिंग बिजनेस, आज भी मेरा 3-4 मेरे क्लाइंट्स को केटरिंग बिजनेस जा रहा है, जो कि मेरा फ्रेंड संभाल रहा है, जो मैंने ऑलरेडी सेट करके रखा है। एज आई सेड कि मैंने जूस का स्टॉल भी लगाया, आई हैव ट्राइड ऑन टू दैट। सो आई डोंट नो कितने लोगों ने सुना है एमबीए चाय वाला, जो कि अभी हर जगह फेमस हो रहा है, उस पे इवन पिक्चर भी आ रहा है। उसको एमबीए करना था, एमबीए को उसने एडमिशन लोगे छोड़ दिया। आफ्टर दैट उसने चाय का ठेला 6-7 जगह डाला। ही सफर्ड लॉसेस एंड एंडेड अप विद बैड एक्सपीरियंस। देन ही मूव टू बड़ौदा, राजकोट। चाय देखो, चाय तो सादी रहती है, बट वो फेमस क्यों हुआ आज? जो उसका डिलीवर करने का तरीका था, जो कप्स में उसने डिलीवर किया नियर आवर कॉलेज। आई डोंट नो कि बहुत अभी यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स है कॉलेज में, आप लोग अगर घूमते हो तो अपने यहाँ पे कितने सारे चाय के दुकान है, प्रॉपर शॉप्स भी है, प्रॉपर टपरी भी है, बट हर एक का डिलीवरी हो गया, सर्विस हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, वैरायटी हो गई, हर एक की अलग अलग है। अगर आप पूना में बोलो तो पूना में नियर बाय यहाँ पे आपने एक फेमस है कन्नू की चाय। ही इज हैविंग 65 डिफरेंट वैरायटी ऑफ चाय। एक चाय 40-50 रुपए को वो सेल करता है। सादी चाय होगी तो 25 रुपीज को सेल करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज हैविंग चाय अप टू 75-100 रुपीज। लोग जाके पीते हैं यार, आप स्टार्ट तो करो। कप्स कुछ अलग दो, कुछ सर्विस अच्छी दो, लाइक ये एमबीए चाय वाला था। ओके, सो ही स्टार्टेड डिलीवरिंग इनटू डिफरेंट साइज ऑफ कप्स। खुद जाके ट्रे में सर्व करता था, हाथ में नहीं देता था। ओके, एंड इंग्लिश में बात करता था, एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। चाय जैसी तो चाय उसने भी बनाई है, सब भी बना रहे, बट आज उसका गाइस टर्नओवर इज इनटू सीआर एंड वो बंदे पे आज पिक्चर आ रहा है। तो सोचा, सो कुछ भी काम आप स्टार्ट कर सकते हो, इट इज नॉट अ बिग थिंग एंड यू शुड बी नॉट अशेम्ड। यार आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस करते वक्त आप सोच लो, अगर आपने सोचा ना यार ये क्या बोलेगा वो क्या बोलेगा, दुनिया गई भाड़ में, मुझे बिजनेस करना है, दैट इज अ फिक्स। ऐसे नहीं कि मैंने ताने नहीं सुने, बट आज वही लोग जो नियर बाय मेरे 4-5 लोग थे कि जिनसे मैंने सोचा था कि ठीक है यार इसका चल रहा है, ये टाइम पास ही शुरू है इसका कुछ ना कुछ, अभी अच्छे मतलब उनके मुंह से अच्छे शब्द निकलते यार, वी नो पहले से ये एनर्जेटिक है, कुछ ना कुछ करेगा, मालूम था हमें। बट ठीक है, ये चीजें होती है। सो मुझे कहना क्या है, देखो मैंने ब्रैकेट में जानबूझ के डाला है, करो तो सबसे हटके करो और सबसे बढ़िया करो। क्लाइंट को यार ऐसी चीज डिलीवर करो ना कि दैट इज अनएक्सपेक्टेड फॉर हिम। टुडे ऑल्सो जितने भी मेरे क्लाइंट्स है ना, एवरीवन इज हैप्पी। ऐसा कोई भी क्लाइंट नहीं कि जो जिसने मेरे साथ काम स्टार्ट किया है एंड कुछ सर्विस अच्छी नहीं या कुछ चीजें प्रॉब्लम है एंड इसलिए उसने काम छोड़ दिया। ओके, जितने भी मेरे आज क्लाइंट्स है ना,
सब लोगों को मैंने पकड़ के रखा है, आई एम डिलीवरिंग द एक्सीलेंट सर्विस टू देम इवन इनटू माय क्लासेस सेक्टर एज वेल एज एक्सपोर्ट सेक्टर, बिकॉज सर्विस मैं खुद हैंडल कर रहा हूँ ये दोनों चीजों की। जैसे मैंने बोला ट्रेडिंग इनटू टेक्सटाइल सेक्टर अलॉन्ग विथ एक्सेसरीज, अपने कॉलेज एरियाज में या फ्रेंड सर्कल में आप देखोगे इवन कहीं से आप परचेज भी करते हो, शूज, बेल्ट, वॉलेट, वॉचेस, परफ्यूम एक्सेट्रा, अगर आपके पास है, आपने यूज किया, यू कैन सेल ऑन टू OLX स्पीकर। ओके, सो आपने लिया, आपने यूज किया, आपने सेल कर दिया। सेकेंडली, कोई अगर डिस्ट्रीब्यूटर डीलर है, ओके, सो डिस्ट्रीब्यूटर डीलर से फोटोज वगैरह लेके आप सब जगह पोस्टिंग कर दो, तो भी आपको ऑर्डर्स आनी है, तो आपको इन्वेंट्री मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड, जैसे मैंने बोला मार्केटिंग सर्विसेज हो गए, टीचिंग सर्विसेज, अकाउंटिंग सर्विसेज, जिसका अकाउंटिंग अच्छा है यू कैन गो इनटू अकाउंटिंग सर्विसेज। आप ढूंढो, आप पोस्टिंग फेसबुक ग्रुप्स में करो, आपको 100% गाइस काम आना है। जिसका टीचिंग अच्छा है, बात करना अच्छा है, जिसको पढ़ाना अच्छा लग रहा है, स्टार्ट विथ स्मॉल टीचिंग सर्विसेज, 1st to 10th लो, 1st to 12th लो, 11th 12th लो, बैचलर्स, मास्टर्स, एनी सॉर्ट ऑफ थिंग, बट डू दैट। ट्रैवलिंग बिजनेस, दिस वाज वन ऑफ द आइडिया, ये मैंने कभी इंप्लीमेंट नहीं किया है, बट आई थिंक ये इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। लाइक ट्रैवलिंग बिजनेस मैंने क्या डाला है, बहुत सारे, देखो आप कौन से भी फोर्ट पे जाओ, हिस्टोरिक प्लेसेस पे जाओ, ऐसा 110% होगा आपको कोई ना कोई फॉरेन नेशनल वहां पे मिलेगा, या आज तक वो फॉरेन नेशनल ने विजिट नहीं किया ऐसा नहीं है। सो आप क्या कर सकते हो कि आप, जैसे मैंने बोला, द सिंपल थिंग इज, देखो ऑफलाइन मीडिया इज इंपॉर्टेंट, बट रादर स्टार्टअप बिजनेस जो है, दे शुड नॉट गो इनटू द ऑफलाइन मीडिया इमीडिएटली, दे शुड गो इनटू द ऑनलाइन मीडिया, बिकॉज वहां पे कॉस्ट आपका बहुत सारा सेव हो जाता है, या नहीं के बराबर ऑर्गेनिक मार्केटिंग में आपका पैसा निकल जाता है। सो ट्रैवलिंग बिजनेस से मेरे दिमाग में क्या था कि अपने यहाँ पे जो फेस्टिवल्स है, हिस्टोरिकल प्लेसेस है, फोर्ट्स है, नेचर है, सराउंडिंग ब्यूटीज, बहुत सारी चीजें, ओके, यू कैन क्रिएट अ सिंपल पेज एंड अब ट्रैवलिंग बिजनेस स्टार्ट करो। बहुत सारे फॉरेन नेशनल्स यहाँ पे आते हैं, अलग अलग टूर्स को अप्रोच करते हैं, ठीक है, बट आज तक ऐसा कोई पैकेज नहीं बना फॉर फॉरेन नेशनल्स कि आप महाराष्ट्र में आओ, महाराष्ट्र के आपको विद इन 1 वीक K2 के, आपको मालूम होगा, कात्रज टू लेके कोंढाना, मतलब कात्रज से लेके सिंहगढ़ नाइट ट्रेक रहता है, जिनको नहीं मालूम है यू कैन सर्च ऑन टू द गूगल। 1 दिन का ट्रेक वो हो गया, 2 दिन उनको और फोर्ट्स घुमा सकते हो, 2 दिन बीच घुमाओ, 1 दिन जो अपने सब टेम्पल से वो घुमाओ। 5 डेज का पैकेज यार, हंसते खेलते वो बंदो lakhs of rupees में लेते हैं। जस्ट एक बार ट्राई करके देखो, जिनको घूमना पसंद है ना, एंड इट इज नॉट अ बिग थिंग, जस्ट मेक अ ओला, गाड़ी की फैसिलिटी अवेलेबल है, या कोई भी टैक्सी कैब वाले के साथ बात कर लो, 5 दिन ये जगह घूमना है, पैकेज कितना होगा, कॉस्टिंग आपके पास आ गया, फिर जो जगह पे आपको जाना है वहां पे टिकट्स है नहीं है, वहां का कॉस्टिंग देख लो। लाइक एग्जांपल, इफ यू गो टू रायगढ़, वहां पे रोपवे पे आपको 300-400 रुपए भरना है, तो कैलकुलेट दैट कॉस्ट। बाकी गाड़ी का खर्चा देख लिया आपने, 2 अच्छे रेस्टोरेंट में उनको सुबह का शाम का खाना खिला दो। आई डोंट थिंक सो द एक्सपेंस वुड बी मोर देन 50,000। 5 दिन भी आप घुमाते हो, 50-60 हजार के ऊपर खर्चा नहीं है। अच्छे होटल में उनका बुकिंग करवा दो और 50,000 खर्चा जाएगा। लाइक इफ यू टेक JW मैरियट ऑल्सो या हयात ऑल्सो, पर डे आपको कॉस्टिंग 6 से 8 हजार रुपए का रूम का है। हायर टू हायर सीजन में रूम का भाड़ा जाता है 12-13 हजार। सो पूरा आपका पैकेज 50,000 लाख रुपए में बन जाएगा, एंड 1 हफ्ते का आप उनको टूर भी देते हो, एडिंग योर 50,000 प्रॉफिट। हंसते हंसते ये गाइज आपको काम मिलेगा। ओके, फ्रीलांस बिजनेस इन एवरी फील्ड। लाइक आपको अगर लैंग्वेज मालूम है कोई, लाइक मैंने स्कूल में मैंने जर्मन सीखा था, कोई रहेंगे यहाँ पे जिनको जर्मन, जापानीज, चाइनीज, संस्कृत, एनी सॉर्ट ऑफ चीजें आप अगर कर रहे हो, तो यू कैन स्टार्ट अ फ्रीलांस बिजनेस, कि किसी को ट्रांसलेटर लगता है, ओके, कोई स्कूल कॉलेजेस में एज अ ट्यूटर लगता है, इवन क्लासेस में ट्यूटर लगता है, तो यू कैन डू दैट। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, पोस्टिंग सोशल मीडिया वगैरह हो गया, यू कैन स्टार्ट अ फ्रीलांस बिजनेस। Coming to my current industry, export and import being consultant, you can start this business also without any investment again। कि कोई भी आपके पास अगर चीज है, ऑनलाइन प्रमोट करो, प्रॉपर प्रोडक्ट नॉलेज लो, उसका प्रॉपर मार्केट ढूंढो, वहां पे प्रमोट करो, एडवांस ऑर्डर्स आपको मिलते हैं, प्रोसेस दैट एक्सपोर्ट थिंग। चलो आपको उतना नहीं करना है, प्रॉपर नॉलेज आप लो, कोई भी एक कंपनी को एज अ कंसल्टेंट काम करो। इवन मेरे बैच में एक बंदा था, he is currently doing export import consultancy, still we are into touch। सो आप ये काम कर सकते हो। सो बहुत सारी दोस्तों बिजनेस आइडियाज है, बट आई वुड लाइक टू से कि हर एक बंदे ने ना बिजनेस बिफोर 25 ट्राई करना चाहिए। ओके, डोंट बी निगेटिव, टेक इट एज अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस।
I would not say कि हर एक बंदा successful होता है immediately, but you give your 100% continuously into that. एक point आता है यार वो successful होना है वो काम को, ठीक है? So try with your startups. अगर आपको कुछ भी फिर भी दिक्कत आती है, I would always be there to mentor you because I basically like to do that. And even मैंने आनंद सर को ये भी बोला था कि like college ने मुझे 2 साल दिए हैं and college has helped me lot. So it's now my turn कि जितना भी हो सके I would do the best possible for my college. So 100% I would be there, okay? And if I would suggest, like still be, अभी भी आपके दिमाग में कुछ भी business plans आते हैं, talk with your mentors. They are there to guide you. Even if you require anytime my support, you can connect me via social media or even through Anand sir also. Okay? So just a small and a last thing. So just a takeaway, do the best for your client as it's just your beginning, guys. Don't always think about the monetary aspect. Let it be your job, business, studies, anything. Just try to give your best into all. And trust me, if you do the same, no one can be like you. Set your own targets, just do or die, but achieve your targets. मतलब क्या है? आप भले काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, इवन घर वालों के साथ आपके रिलेशन से, फ्रेंड्स के साथ, स्टडीज में, जस्ट गिव योर बेस्ट थिंग एंड डोंट एक्सपेक्ट यार मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे ये मिलना ही चाहिए. यू गिव योर 100% एंड नेचर इज देयर टू गिव यू. सो नो एक्सक्यूज, नो रीजन, नो मैटर, नथिंग कैन ब्रेक यू गाइज. ठीक से सुनो, नथिंग कैन ब्रेक यू, जस्ट योर थॉट्स, योर ओन माइंड एंड योर विल पावर कैन किल यू. मतलब क्या है? आपके खाली थॉट्स, आपका माइंड एंड आपकी विल पावर आपको खाली मार सकती है, बट इफ यू आर स्ट्रांग इनटू दैट देन जस्ट यू आर अनस्टॉपेबल. ओके, सो जस्ट आई नाउ एंड टू द टुडेज सेशंस एंड आई थैंक यू ऑल कि सब लोगों ने मुझे ध्यान देके अच्छा सुना एंड आई होप कि आप इसमें से कुछ अच्छा लेके जाके कुछ ना कुछ स्टार्ट करोगे. ओके, सो वंस अगेन थैंक यू मैट्रिक्स कॉलेज एज वेल एज ऑल माय मेंटर्स. थैंक यू. यस मैम. And guys, if you have any questions, I request you can just unmute and ask. Hello, am I audible? Yes, ma'am. Yeah. Thank you, sir. Karan sir. Thank you so much. It's a really wonderful session. You guide our students and inspire too much. So, students, if you want to any question, please. Hello. And I request to all students, please unmute your camera so we will take a photograph with Karan sir. Karan sir, please. Ma'am, I have a question. Okay. Karan sir, are you there? Yes, yes, I'm listening. Yeah. Yes, yes. Please, Indrajit. Yes, sir. Good afternoon, sir. Yeah, good afternoon. Sir, actually, I have a business of automobile spare parts in Aurangabad. Okay, great. So I wanted some ideas from you that how can I grow my business digitally? Yes. Sir, I want some ideas from you that how can I grow my business digitally? Okay. So simple thing I would like to ask that it is onto a large scale or small scale? No, sir. It's just a shop. It's small shop. Okay. And it is a auto spare parts, right? Yes, automobile spare parts. Yes, like tractor and agriculture spare parts. Like. Understood. Understood. Great. So, like you are into the business for past how many years? Around 4 to 5 years, sir. 4 to 5 years you are looking into that business. Yes, sir. Okay. So have you taken your business digitally? The first and main thing. Not yet, sir. Just I have just Instagram account of that business. Nothing else. Okay. But are you posting regularly onto that Instagram account? No, sir. Not regular. What is the use of that? You are knowing that you are having your business. Even I don't think so. Full Aurangabad district would be knowing that Indrajit is having that auto spare part business. Then Pune, Mumbai is too far away from to that. So the basic suggestion I would be giving you and all other guys as well, that when you have any sort of business,
just make your social presence, as I said, Facebook, LinkedIn, Instagram, even onto Twitter. In a 1 week, just take out few time and add a content basically. You should have a habit of reading basically. Okay. If you're having a habit of reading, so you can get a lot of ideas and news about your industry as well as other industry. Okay. You can use any, there are a lot of app. Like if I say brands 360, there is one app. Just put your company details and you can get a ready-made post, put on some content and just post onto your page. Then promote your page. Daily you should add 10 to 20 connections. If you don't have daily to sit on a social media, just take out 1 hour and just add around 100 connections into 1 week. Then post into different Facebook group. Thus you can generate inquiry. But if you are sitting idle and if you say that you want to develop and grow your business, that's not possible. You need to promote, because how I would know that you are having your business? How the another district or another people would be knowing you are having a business, unless and until you go and promote there. Try to take part into all sort of exhibition. Go and just give your pamphlet, just exchange your cards. After that, send them a professional mail. Just don't think that this industry doesn't belong to the commercial people. No one, if I send mail, no one would be saying, अरे भाई यार 100 में से एक बंदा तो मेल देखेगा, and that one guy is important for us. So try to do this thing, take up all the business digitally, try to promote and try to do postings 110% within a 2 week or 10 days. I'm assured if you do posting regularly, you can generate minimum 5 to 10 inquiries. Minimum. At least एक inquiry तो generate हो जाएगी. Okay? Yes, sir. So, sir, can India Mart help me with this? Listen, I would say even to my participant into my program, I strongly suggest don't take any paid promotion portal like India Mart, Trade India, Exporter India. Just think if you take a package of 5,000, their basic package, and again their second, third packages of 25, 30,000. Just think there are hundreds of people who are purchasing that 5,000 rupees package and who are doing the same business which you are doing that. So inquiry would be generated one. It would be given to a platinum member, then gold member, then silver member, then basic member. So there are less chances. After generating the inquiry, it is your work how much time follow-up you are taking with the client by giving the best rates. So as I said, just post on all B2B, B2C media, post all things for free of cost. And while doing a regular posting, just see the results after 3 months, you would be ranked organically. If you just search my company onto Google, Ainsa Global, it's AAA ENSA. It's onto a slide. Okay. I have not done a single rupee promotion. Even I have not spent a single rupee. But if you type Ainsa, you can see full page of my searches, which is Ainsa. Even for EFT, we are doing the paid promotion, which is we are spending a huge cost. But for Ainsa, we were doing free posting regularly. And after 6 months, we got a good results. And today we are organically onto the top. And we get a good general inquiries for consultancies and export import. So I would request you to follow the same practice. Okay. Yes, sir. Thank you so much, sir. Yeah, welcome. Any more students who want to ask questions? Student, please unmute your video. We'll take photograph with Karan sir. Please. Hello. Yes. Ma'am, I would like to ask one question to Karan sir. Can I? Yes, please. Karan sir, can you share your personal contact number or anything else so that we can reach to you whether we need any help or not? Yeah, surely. You can take from Dr. Harshali ma'am as well as Dr. Anand sir. They can share you. Oh, great, sir. Thank you. Yeah, thank you. Anyone more to Mohit ask sir? questions? Kadlak sir, are you there? Yes, madam. Yes. Yes. Please click the photograph, sir. Yes, ma'am. Yeah. Done, sir?
Is it done, ma'am? Just I want to say one thing actually. Yes, please, sir. Just I saw into the video that Dr. Satish sir is also actually there. Yes. So, hello sir, how are you? Good afternoon. Good afternoon, Karan. How are you? Yeah, all well, sir. Actually, I was not knowing that you are also attending this session, sir. No, I liked your session, Karan, and I was not aware that you have developed yourself so nicely that all the details which you could share with the students. I was really wondering, like, from where you have learned this. I don't think, though you are giving us the credit, but then we have not taught you all these things, Karan. No, sir. That is your humbleness that you are giving us that credit. No, sir. It's absolutely, as I said, just because of my mentors, my colleagues. Today, what am I achieving today? Just I have listened and obeyed to your orders. I would say. I have not thought too much. Like whatever the task, the things, the skills. It's really, sir, that one incident I remember, students, that Satish sir was not well. He was bedridden for COVID and some medical issues, and I had visited college before past 2 to 4 months, I think. I would say Dr. Satish sir is so much energetic that he was not feeling well. He was having a belt on his back, but still there were no expressions that he was not feeling well, and he was still working energetic. So this was our motivation, sir. You are saying that you have not learned anything, but I would say this is my motivation, which helps me to keep working more and more. That in this age also, the sir is so much energetic. Even Dr. Shilpa ma'am, she is also so much energetic. So I take these energies from you mentors only, sir. That's true, Karan. Work is worship. And if you start loving whatever you are doing, you will start growing in that particular field. That is my say to all the students present here. Yes, sir. Wholeheartedly, whatever you are doing, do it wholeheartedly. Start thinking about it, get yourself involved into it, and then you will start getting new ideas out of it. And that is called as innovation in startups or innovation in businesses, which Karan has done. So I'm really proud of you, Karan. Yeah, thank you, sir. Thank you, Karan sir. Really, it's a wonderful session. Yes, ma'am. Yes, thank you. So, all the best, guys. I just wish you all the best from today's incomings. I hope that you can think and start your business or towards your journey. Even if you want any help, you can contact your mentor and we can be in touch also ahead. Okay. Thank you. Ma'am, can I leave this meeting or end up? Yes, sir. Yes. Yeah. Thank you. Good day. Thank you, sir. Yeah. Thank you, sir.